Hi Anchal, how are you? Hi Amit, I'm good. How about you? Yeah, I'm good. So Anchal, we are recording this video. तो जो भी अभी लोग एमबीए परस्यू करना चाह रहे हैं एमबीए एनालिटिक्स, आई एम काशीपुर से। तो उस ऑडियंस के लिए बेसिकली ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो उन लोगों के काफी कुछ डाउट्स होते हैं इस कोर्स को लेकर कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उस कोर्स की क्या स्किल्स उनके पास होनी चाहिए। और भी काफी उनके डाउट्स कि वहाँ पर पूरा जो करिकुलम होगा वो किस टाइप का करिकुलम होगा, या कुछ ऐसी चीजें जो हम उन्हें वहाँ पर अभी बता पाए जिससे कि उन लोगों को काफी हेल्प वहाँ पर मिल जाए कि उनका ये कोर्स अच्छे से वो परस्यू कर पाए। तो कुछ इस क्वेश्चंस के अराउंड हम ये वीडियो यहाँ पर करने वाले हैं। ओके। हाँ हाँ, डन। ओके। एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम योर साइड आल्सो, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे डाउट्स आए थे फ्रॉम द पास्ट 2 months रिगार्डिंग एमबीए एनालिटिक्स, हाउ इज द कोर्स करिकुलम सिलेक्शन प्रोसेस एंड एवरीथिंग। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव दैट थ्रू योर वीडियो अगर कुछ लोग हमारे एमबीए एनालिटिक्स प्रोग्राम को और अच्छे और बेटर तरीके से समझ सकें तो दैट्स वेरी गुड। सो हैप्पी हाँ। टू हेल्प। या थैंक यू। सो वही, क्योंकि बहुत सारे लोगों के डाउट्स अभी भी मेरे पास आ रहे हैं, कुछ बाकी वीडियोस में भी वो कमेंट करके पूछते रहते हैं ऐसे। तो मैं चाहता हूँ कि एक पूरा उनको एक ऐसा वीडियो मिल जाए जिससे कि उनके सारे डाउट्स हम एड्रेस कर पाए एक ही वीडियो से। श्योर। तो सबसे पहले अंचल, आप एक बार इंट्रोड्यूस कर दो ऑडियंस को। हाँ। So, hi. So, as you already know, I'm Anchal Gupta. So, I'm a pass out of 2023 from IIM Kashipur as an MBA Analytics student. Before joining MBA Analytics, I have been part of Infosys as a senior systems engineer, where I was working into software development and into the support work. And I have also completed my BTech in civil engineering from Manipal University, Jaipur. So this is my basic introduction. Currently, if after my MBA analytics program, I have been part of Capgemini as the senior consultant, and I'm working as a market research over there into the market research team. And over there, I'm working into different accounts. I had to handle a lot of research work in terms of market analysis or in terms of company analysis. So this is kind of the work which I am doing post my MBA. ओके, दैट्स ग्रेट। सो अंचल, कैन यू टेक अस थ्रू योर एमबीए एनालिटिक्स जर्नी, as in what skills are required primarily for this course, like coding, what level of coding is required, or some sort of other stuff. Sure, Amit. So basically, if I talk about MBA analytics journey in specific, when I joined this course, I also had a lot of speculations that I might be needing certain kind of skills or kind of knowledge to survive in this course. But honestly, if I tell you about my journey, I actually feel कि कोई जरूरत थी नहीं. I'll be very simple and very honest. Like when I gave my interviewer actually asked me about my statistics की knowledge, very little, basic, bare minimum जो we learn in our 10th or 12th. And उसके अलावा they were just focusing on my work experience and उसमें they were talking about that what kind of technologies you have learned and how much I am actually able to convince them कि I want to get into the MBA analytics program and is my answer that satisfying. तो उनको उससे मतलब नहीं था कि हमें कुछ आता है कि नहीं आता है, उन्हें इस चीज से जरूर मतलब था कि whether we are serious towards this course. Because everyone will ask you, if you give a normal MBA interview, people will ask you why MBA? Why do you want to do MBA from this particular college or why MBA? And we got a question in our interview saying that why MBA analytics from IIM Kashipur. First of all, I'll just say very simply that MBA analytics program is not that popular among all the colleges currently. And IIM Kashipur is one of the most famous colleges and one of the most prestigious colleges to provide this kind of course. And the learning is so great over here in terms of MBA analytics. If someone who is into analytics will be actually getting an opportunity to learn each and everything in all the great depth, and the faculty as well as the course curriculum which they have created for MBA analytics is great.
So someone who is looking out for opportunity to learn analytics in and out has this opportunity in hand and will be able to survive entirely through this, if even if he or she doesn't know coding. अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई ऑल्सो वॉज स्केप्टिकल बिकॉज आई डेंट न्यू कोडिंग दैट मच, एंड मेरे अंदर ये स्किल्स प्रेवलेंट नहीं थे कि मैं कोडिंग स्किल्स के अकॉर्डिंगली आई कैन वर्क. आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क इनटू डेटा. डेटा वाज समथिंग व्हिच एक्चुअली वाज लाइक फन फॉर मी. अच्छा लगता था कि some kind of data is coming and we have to analyze it and give some insights. तो वो वाली चीज तो थी, बट कोडिंग स्किल्स तो आई ऑल्सो वॉज लैकिंग अ लॉट. तो वो उस चीज को मैंने इन कंसिडरेशन करके व्हेन आई गेव माय इंटरव्यू एंड आई गॉट इनटू द एमबीए एनालिटिक्स करिकुलम. सो फर्स्ट ईयर में एवरीवन स्टार्ट्स वेरी स्लो. इफ आई स्टिल रिमेम्बर फर्स्ट टर्म में हम लोग का एमबीए एनालिटिक्स का सिर्फ एक सब्जेक्ट था, एंड ग्रेजुअली स्लोली विद ईच टर्म हम लोग का सब्जेक्ट बढ़ा. तो हम लोग को स्टार्टिंग में एमबीए एनालिटिक्स करिकुलम के लिए फाउंडेशनल कोर्सेज मिले थे. आई आई थिंक इट वाज बेस्ड आउट ऑफ स्टैटिस्टिक्स का फाउंडेशन कोर्स एंड मैथमेटिक्स का फाउंडेशन कोर्सेज. उस कोर्स को डेवलप करके हम लोग ने सेकंड टर्म थर्ड टर्म में किया. द इंटेंसिव पार्ट स्टार्टेड इन द सेकेंड ईयर, जहाँ पे हम वी स्टार्टेड डीलिंग इन एआई, डीप लर्निंग और मे बी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वी हैड वन कोर्स. So, so those were the things हम लोग ने जो second year में develop करी. So in short, if I tell you, if a person who is skeptical कि MBA analytics course is something which is too technical, yes, it is technical. No doubt, it is not technical. But if you have the spirit to learn, if you want to actually learn this MBA analytics, the person will not be requiring coding skills, or he or she should not be a pro coder to enter into the course. आप कोर्स में एंटर करोगे करोगे तो कोर्स इज डिजाइंड इन सच अ वे कि आप ग्रेजुअली स्लोली, इफ यू आर सीरियस टुवर्ड्स योर कोर्स, यू विल लर्न एवरीथिंग एंड यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स. तो इसलिए आई जस्ट सजेस्ट, जस्ट नो योर बेसिक्स. बेसिक्स वो भी बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच इज taught in 10th and 12th, and about your own self during your interview. If you are not having coding skills, it's fine. If you don't have work experience, that is also fine, because ये सब चीजें will not affect your chances into MBA analytics program in terms of performance. In terms of getting into, definitely composite score जो आप लोग का आता है वो will have some percentage of work experience or may have some percentage of 10th and 12th. लेकिन आप जब कोर्स आपको ऑफर हो चुका है, when you are getting into the program, these things will not affect. It's just about your hard work, how much you are putting in, how much you are learning from the course, because the course is structured very beautifully, starting from the foundational courses and gradually slowly moving towards the coding part and into the more technical part, and then coming out with the analytics program where you will be actually analyzing all the data insights. So this is my take on MBA analytics. And coming from a person who herself was not confident, I will say you can do great into this program only by giving your 100% during the learning of this course. That's it. या दैट्स ग्रेट आंसर, थैंक यू. सो अंचल, एक चीज यहाँ पर हम लोग आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे अभी इनका इंटरव्यू होने वाला है एस्पिरेंट्स का, अभी 24 बैच के लिए. तो उस इंटरव्यू से रिलेटेड अगर तुम कुछ इनको गाइड करना चाहो इन एस्पिरेंट्स को कि किन चीजों पर उनको ज्यादा फोकस करना चाहिए, मतलब बेसिकली एक अपना इंटरव्यू जर्नी आप अगर यहाँ पर शेयर करते हैं. Okay. So I'll start with my interview journey कि मैंने कैसे शुरू किया था once I got the call for my MBA analytics program. So as soon as I got the call, I was also बहुत ज़्यादा tense in fact, क्योंकि it's a huge thing for me. तो बहुत tension था कि कैसे होगा क्या होगा, and I was not sure कि किसको अप्रोच करना है और कैसे अप्रोच करना है to understand कि इस curriculum के लिए what kind of interview questions are getting asked. So I first understood the requirement of the course, which was mostly based out of statistics. तो मुझे ये अंडरस्टैंडिंग जरूर हो गई कि हमें बेसिक स्टैटिस्टिक्स आना बहुत जरूरी है टू गिव एन इंटरव्यूअर एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क अस क्वेश्चंस, जिससे उनको अंडरस्टैंडिंग हो सके
कि this person has a statistical background and they or he or she can actually adhere to the curriculum which is coming up in the next 2 years. तो वो एक बेसिक चीज मैंने अंडरस्टैंड किया. बिफोर दैट एक अंडरस्टैंडिंग मेरी ये भी थी कि मैं वर्क एक्सपीरियंस थी, तो आई ऑलवेज न्यू कि दे विल बी क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू माय वर्क एक्सपीरियंस. वो जरूर पूछा जाएगा मुझसे टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आई वाज वर्किंग फॉर, व्हाट काइंड ऑफ वर्क आई वाज डूइंग. तो दैट वाज समथिंग मैंने जिस पे फोकस किया कि मुझे मेरा वर्क एक्सपीरियंस इन एंड आउट पता होना चाहिए. आई वाज पार्ट ऑफ इन्फोसिस फॉर 3 years विच इज अ लॉन्ग टाइम. तो मुझे पता होना चाहिए कि हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी इन इन्फोसिस एंड व्हाट करंटली आई वाज डूइंग बिफोर माय एमबीए स्टार्टेड और बिफोर द इंटरव्यू वाज एक्चुअली हैपनिंग. तो दैट वर द टू थिंग्स व्हिच वर माय मेजर फोकस. एंड apart from that I had a basic understanding कि MBA का इंटरव्यू जो होता है वो इट्स नॉट ओनली अबाउट एनालिटिक्स लगा देने से, इट्स नॉट ओनली अबाउट एनालिटिक्स इंटरव्यू. एमबीए का जो बेसिक इंटरव्यू होता है वो हमें आना चाहिए. दैट इज बेसिक सेल्फ इंट्रोडक्शन अबाउट आवर सेल्फ, knowing about the surroundings in which we live. A simple सा example है, if we tell the interviewer कि हम एक particular state या एक particular city से belong करते हैं and the interview goes around to ask certain highlights of that city or state, तो वो हमें पता होने चाहिए. इट्स अ बेसिक वेरी जनरल नॉलेज क्वेश्चन, लेकिन ये काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. आई स्टिल रिमेम्बर मी गेटिंग आस्क्ड दीज क्वेश्चंस एंड क्योंकि ऑलरेडी मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि एमबीए इंटरव्यू कैसे देना होता है, तो आई एक्चुअली प्रिपेयर्ड ऑन दोज लाइंस. Okay, that's great. So I agree. All these things will be asked, and we should understand common things that is happening around us. Okay. नेक्स्ट थिंग, अभी एक क्वेश्चन उनका ये भी आता है कि जैसे अभी इनका इंटरव्यू हो जाएगा, तो उसके बाद और ज्वाइनिंग तक, मतलब जब से क्लासेस बिगिन करेंगे तो उसके बीच जो टाइम पीरियड बचता है, तो उसमें कुछ ऐसा बताना चाहोगे कि वो कुछ स्किल्स पर काम करे जो वहां पर उसको काफी हेल्प करेगी विद इन दैट कोर्स. तो अगर कपल ऑफ मंथ्स का टाइम बीच में बच रहा है तो उसको वो कैसे अपना यूटिलाइज कर सकता है, किन चीजों पर वो फोकस कर ले कि वहां पर उसको काफी वहां पर हेल्प मिल जाएगी. वैसे इफ यू आस्क मी टू गिव अ वेरी ब्लंट आंसर, तो मैं यही बोलूंगी कि ओवर थिंकिंग या ओवर हर चीज करना खराब होता है. तो आई विल डेफिनेटली से कि इफ यू आर गेटिंग सिलेक्टेड इनटू एनी एमबीए प्रोग्राम, बी इट एमबीए एनालिटिक्स प्रोग्राम और एनी अदर एमबीए प्रोग्राम, so you guys, everyone listening to this video should understand that they need to take a break before getting into something that intensive. लेकिन on a different level, so some people are studious, they want to always have a upper hand in terms of everything. तो उनके लिए मैं बस इतना ही सजेस्ट करना चाहूंगी कि if possible they should learn basics of Excel. That is a very important aspect which I'll keep in mind, that Excel is needed in every part of the MBA journey. तो Excel की skills अगर आप develop कर लेते हो तो that is a very good thing. And apart from that, I'll just suggest to understand that how the MBA curriculum actually functions in the next 2 years. तो आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके अगर जाओगे तो आप एकदम से यू विल नॉट गेट ड्रेन्ड, बिकॉज हम दोनों जानते हैं कि व्हेन वी स्टार्टेड आवर जर्नी, तो हम लोग ने वो जो 11 डेज का इंडक्शन प्रोग्राम, 10 डेज का इंडक्शन प्रोग्राम किया था, दैट वाज क्वाइट ड्रेनिंग फॉर ईच वन ऑफ अस. तो इसलिए आई विल जस्ट से कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो यू कैन अंडरस्टैंड बेसिक एक्सेल. If you are joining into analytics program, definitely statistics could be an plus for you, and basic PPT skills can actually help you a lot to go through your MBA journey. बिल्कुल. ओरिएंटेशन में मुझे याद आ रहा है कि स्टार्टिंग के 10 डेज जब वो पूरा ओरिएंटेशन प्रोग्राम चला था, तो वहाँ पर बहुत सारी पीपीटीज और बहुत सारा एक्सेल पर काम किया था. तो अगर वो स्किल्स पहले से आपको आती है तो वहाँ पर आप Hmm. काफी अच्छे से लीड कर पाएंगे. लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पर जाकर के आप नहीं सीखेंगे. बस एक एज अगर आपको चाहिए तो आपको वो चीजें पहले से कर लेना है, थोड़ा सा आपको वहां पर प्लस पॉइंट एक मिलेगा. एक चीज और आपसे हम पूछना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों का ये भी एक डाउट होता है कि जैसे आई एम काशीपुर के दो एमबीए प्रोग्राम्स हैं, एक एमबीए कोर का है और एक एमबीए एनालिटिक्स का है. तो इसमें थोड़ा सा अपना बता दो कि करिकुलम वाइज कहाँ पर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स आते हैं, तो उससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा लोगों को कि
कौन सी चीजें उनके लिए मैच करेंगे एमबीए कोर्स से, और कुछ ऐसे कोर्स है जो कि एमबीए कोर्स से डिफरेंट है। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड एक बार दे दीजिए। श्योर। तो बेसिकली अगर किसी को एमबीए जर्नी के बारे में या एमबीए करिकुलम के बारे में पता होता है, तो एवरीवन नोस कि एक मेजर्स होता है, एक माइनर्स होता है। सो पीपल चूज देयर मेजर्स, पीपल चूज देयर माइनर्स, एंड देन दे डू एन एमबीए डिग्री इन 2 years। तो मैं आपको बस इतना ही डिफरेंशिएशन समझाना चाहूंगी कि एमबीए एनालिटिक्स इज समथिंग जहाँ पे एनालिटिक्स हमारा मेजर होता है, मेजर सब्जेक्ट होता है। उसमें मेजर सब होता है, तो उसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू एनालिटिक्स होंगे, दैट वुड बी आर मेजर थिंग्स विच वी आर लर्निंग। जबकि हम एमबीए की बात करें, तो एमबीए इज ऑल्सो हैविंग डिफरेंट मेजर्स लाइक फाइनेंस, मे बी मार्केटिंग, मे बी ऑपरेशन। तो वो हमारा एमबीए करिकुलम के अंदर आता है। अगर आप ऑन अ सुपरफिशियल लेवल बात करते हो, तो इफ अकॉर्डिंग टू मी, आई एम काशीपुर ने कभी एमबीए और एमबीए एनालिटिक्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं किया कि पीपल हु आर पार्ट ऑफ एमबीए प्रोग्राम will not be able to learn things which are part of MBA analytics program, and vice versa also. लेकिन it's just as simple as that कि MBA analytics people are doing a majors in MBA in the in the analytics course, and उसी तरीके से MBA people are doing majors into finance, operations, maybe marketing. So यही मुझे basic difference लगता है. They are all under one umbrella only. या राइट, मुझे याद है पूरा कि हम लोग कुछ कोर्सेज, मैंने खुद ने कुछ कोर्सेज एनालिटिक्स के परस्यू किए थे वहां पर। और एनालिटिक्स वाले भी बहुत सारे लोग एमबीए कोर के कोर्सेज ले रहे थे सेकंड ईयर में भी, प्लस फर्स्ट ईयर में भी कुछ कोर्सेज हमारे कॉमन ही चल रहे थे। तो एज सच इतना मेजर कोई डिफरेंस नहीं है। बस वो जैसा अंचल ने बोला कि कुछ वहां पर मेजर्स वो एनालिटिक्स में कर रहे हैं, और इधर जो एमबीए कोर के स्टूडेंट्स हैं वो मेजर्स अपने मार्केटिंग, फाइनेंस, इन सब डोमेन में कर रहे हैं। तो थोड़ा डोमेन Yeah. का ही डिफरेंस। उसके बाद अंचल जैसे अभी टर्म वन में जाएंगे ये लोग, तो टर्म वन का एक सिचुएशन थोड़ा इनको अगर मिल जाए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि टर्म वन में वो वहां पर सीखने के बाद टर्म टू, टर्म थ्री और फिर सेकंड ईयर पूरा वो तो वो अपने आराम से कर लेगा। लेकिन टर्म वन में जाने के लिए उसको थोड़ा सा एक एक वे उसको अगर मिल जाए कि उसको मतलब वहां पर कैसे करना होगा, क्या क्या सिचुएशंस उसके सामने होंगी, कैसे वो थोड़ा उनको हैंडल कर सकता है, क्योंकि ये चीजें हमारे साथ हुई है वहां पर बिल्कुल। तो अगर टर्म वन में एक हमें पुश मिल जाए तो उसके बाद हम सीख जाते हैं उन चीजों से, और फिर टर्म टू, टर्म थ्री और थ्रू आउट एमबीए हम वो चीजें इंप्लीमेंट कर पाते हैं अच्छे से। तो टर्म वन कैसा इनका होने वाला है, जस्ट एक इनको फ्लैशबैक में ले जाओ। सो अगर इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीए, तो मुझे पर्सनली फील हुआ था कि टर्म वन एज वेल एज टर्म टू आर द टू हेक्टिक टर्म्स विच वी हैव टू फेस। टर्म थ्री में प्रिटी चिल हो जाता है इन्वायरमेंट, या तो हम लोग यूज टू हो जाते हैं उस इन्वायरमेंट के, इसलिए हमें इतना फर्क नहीं पड़ता। बट टर्म वन और टर्म टू दोनों कंपेरेटिवली टू रेस्ट ऑफ द एमबीए जर्नी के कंपेरिजन में ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं। तो इफ आई गिव यू एन ओवरव्यू कि हम लोग हाउ वी प्रोसीड इन टर्म्स, तो as soon as you get into MBA, you will be part of an induction program, which is a very huge thing. हमें इनिशियली यही लगता है कि क्या जरूरत है, क्यों कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशंस होते हैं, लेट नाइट्स होते हैं। बट once you get into that induction program for 10 days, you will understand that what kind of skills, on what kind of challenges are coming to be are upcoming, and how we have to actually deal with them, and especially एक वो जो कैजुअल एटीट्यूड होता है कि हो जाएगा, कर लेंगे, वो वाली चीज खत्म हो जाती है, बिकॉज वी हैव स्ट्रिक्ट डेडलाइंस टू अडेयर टू। अगर वो बोला गया है कि वी हैव टू डू अ सबमिशन एट 11:59 PM, तो करना ही करना है उसमें। आप यू कांट गो एनीवेयर एनीवेयर, आपके सीनियर्स आपको करने ही नहीं देंगे, एंड दैट इज एक्चुअली अ गुड थिंग। क्योंकि 10 days में आपको समझ में आ जाता है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एमबीए इज एक्चुअली गोइंग टू बी लाइक दिस। बिकॉज यू कैन मे बी यू कैन अंडरस्टैंड इस ऐसे कि अगर आप अपने असाइनमेंट्स करते हो एंड आप सिर्फ 2 मिनट से भी अपना असाइनमेंट सबमिट करने में रह जाते हो, द टीचर और द प्रोफेसर विल नॉट एक्चुअली इंकरेज इट और मे नॉट एंटरटेन इट। तो वो चीज को पहले ही बचाने के लिए आपके सीनियर्स आपको हेल्प कर देते हैं कि अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डेडलाइन, अंडरस्टैंड कि डेडलाइंस बहुत शॉर्ट होती है, बहुत सैक्रोसेंट होती हैं, एंड यू हैव टू एक्चुअली अडेयर टू इट।
जब आपका 10 डेज का इंडक्शन प्रोग्राम खत्म हो जाता है, यू विल एक्चुअली फील द चेंज इन योर सेल्फ। फील आ जाता है कि इफ आई हैड सर्वाइव दिस, आई माइट सर्वाइव एवरीथिंग एल्स ऑल्सो। तो वो ओरिएंटेशन होने के बाद डेफिनेटली फर्स्ट टर्म में आपको अंडरस्टैंड ये करना पड़ता है कि आपको क्या प्रायोरिटाइज करना है। एमबीए इज ऑल अबाउट योर ओन प्रायोरिटीज। सम पीपल एक्चुअली focus on studies. So they are like, we only want to study. We have priority that we want to do excellent in our academics. Some people actually want to have a taste of all the things. जिसमें you talk about studies also, you talk about life projects also, you talk about case competitions also, and you can talk about the extracurricular activities, student body activities which are happening. So ये सारी चीजें will be part of your first term, जहाँ पे you will get opportunities to be part of a student body, or you will be getting opportunities to win case competitions, to understand case competitions. बहुत सारे life projects आपको offer होंगे. People who have zero experience in any of the fields will get this opportunity, especially to understand how actually corporate works. So life projects is a very good example to understand कि कॉर्पोरेट कैसे वर्क करता है, धीरे धीरे आप काम कैसे सीखते हो, एंड विद इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन दे विल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. बट एट द एंड आई विल जस्ट से इट इज ऑल अबाउट प्रायोरिटी. If you ask me, my priorities were different. So I had not focused on all the things. My priorities were into case competitions and into the student body activities as well as academics. Some people actually are talented enough to do all the things. So वो आपकी खुद की प्रायोरिटी होती है कि आपको क्या करना है, एंड उसके अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट स्टेप ऑटोमेटिकली हेक्टिक हो जाता है या ऑटोमेटिकली लाइट हो जाता है. इफ समवन हु डजंट वांट टू डू एनीथिंग विल ओनली फोकस ऑन स्टडीज, उनको सिर्फ वो स्टडीज करके वो अपना फर्स्ट टर्म निकालेंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि फर्स्ट टर्म हेक्टिक था. लेकिन पीपल हु आर इनटू ऑल दीज थिंग्स विल एक्चुअली फाइंड 24 hours टू बी लेस, जब बात करी जाए, क्योंकि उसी 2 घंटे में आपको स्टूडेंट बॉडी एक्टिविटी भी करनी है. यू हैव टू अटेंड मीटिंग्स, you have to be a part of certain sports events or some cultural events or something else. So it all depends on the person who is actually pursuing that MBA course, और वो अपने MBA से क्या चाहते हैं ये उनको खुद को डिसाइड करना पड़ता है. But there are ample opportunities for sure. You will never feel that you have been deprived of an opportunity or you are not getting an opportunities. Opportunities will be everywhere. You just need to understand कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको लेनी है, कौन सी is not required for you. So that is my take on the first term of MBA. अब थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा। तो जब हम लोग वहां पर थे एमबीए में, तो ऐसा हो रहा था कि सीनियर्स के साथ में मीटिंग स्टार्ट हो रही है हमारी, बैच मीट, और रात में 9 साढ़े 9 पे बैच मीट स्टार्ट हो गई और फिर वो 2 2 3 3 बजे तक चल रही है। उसके बाद मॉर्निंग में हमें क्लास में कोई असाइनमेंट सबमिट करना है। तो वहां पर ऐसा हाँ. नहीं देखा जाता है कि प्रोफेसर को हम ये चीज बोल पाए कि नहीं, हमें सीनियर्स ने ये कुछ असाइनमेंट दिया था तो हमारा तो सारा टाइम वहां पर चला गया। उल्टा भी नहीं कर सकते कि सीनियर्स को हम ये बोल पाए कि प्रोफेसर ने हमें असाइनमेंट दिया हुआ है तो हम आपका असाइनमेंट अभी थोड़ा डिले करेंगे। तो बेसिकली दोनों की डेडलाइंस है, वो दोनों की डेडलाइन हमें मेट करनी है। ओके, सो अंचल, वन लास्ट थिंग, so just one piece of advice to those aspirants who will be having their interview in coming days. So if you just want to give some piece of advice to those people, just one. I will just say that be confident in what you know. जो भी आता है उसको कॉन्फिडेंस के साथ आप पोर्ट्रे करिए टू द इंटरव्यूअर. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जस्ट बी काम ऑन योर इंटरव्यू डे. बहुत ज्यादा थॉट्स माइंड में प्रोसेस होते हैं कि क्या हो इफ आई डोंट गेट इन, या व्हाट इज गोइंग टू हैपन. दीज थिंग्स आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल. द ओनली थिंग विच इज इन आवर कंट्रोल इज आवर ओन परफॉर्मेंस, which will get impacted if you are feeling anxious या आपको एक लो कॉन्फिडेंस होगा. I'll just say a simple thing to I'll say to all my close ones also. If you are giving an interview, just keep a smile on your face and be confident in what you are saying. And then I think that would do wonders for you. If possible, you can go through all the things before one, like before your interview, you can go through all the things, all kind of questions which can be asked on your personal level. Agar if you know your own self, you will be able to tell that to your interviewer in a good way, and that is something which the interviewer also looks for.
दे डोंट वांट हाई फाई आंसर्स, और उनको ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि मटेरियलिस्टिक आंसर्स आप दीजिए. इफ यू कैन गिव देम जेन्युइन पॉइंटर्स, if you are doing something, or what kind of person you are, or what kind of challenges you have faced in your life, or what kind of future opportunities you are looking for. So if you are able to convince that person with those words, वो obviously आपको chance देंगे to get into the program. Okay, that was great advice. So I hope your advice will definitely help these aspirants. So Sure. thank you so much, Anchal, इतना guide करने के लिए aspirants को. Thank you, Amit. Yeah, Thank you thanks. so much for giving me this opportunity. If I just want to say, if this particular session can help even one of the people who are looking at these videos, I'll be very happy to be part of this. And obviously, I'll just say through your platform only, if anyone is looking out for any opportunities or wants to discuss anything in person also, we are always here, me as well as Amit. You can reach us through our LinkedIn profiles and we'll be able to help you out. Yes, definitely. I will be adding our LinkedIn profiles in description, so you can reach out to me or Anchal regarding this. Yeah. Thank you, Anchal. Thank Thanks you. for the Thank you, Amit. Yeah. Bye bye. bye bye.